Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are diving into the fascinating topic the judiciary in India. आज हम बात करने वाले हैं जुडिशरी के बारे में. एंड अगेन ये हमारी सीरीज का एक दूसरी वीडियो है जिसके अंदर मैंने ये टॉपिक उठाया बिकॉज अगेन ये टॉपिक मुझे बहुत पसंद है. द ओनली रीजन इज बिकॉज इट इज द मिरर ऑफ पावर. पावर क्या होती है जुडिशरी हमें बहुत अच्छे से समझाता है. एंड इट इज नॉट ओनली सुटेबल फॉर क्लास 11th और 12th. It is also beneficial for students, those who are going on for UPSC exams, PCSC exams, and it is also important for people those who want to learn about judiciary. What is judiciary? What are its roles and responsibilities? So, without any delay, let's dive into what we are going to learn in this video. So, in this video, we are going to cover from basic to advanced. We are going to be seeing the detailed understanding about what judiciary is with examples and laws. Also, at the end of the video, I have some important questions that you can look on for your examinations. बहुत interesting video होने वाला है guys. So let's see जो topics हम लोग इसमें cover करने वाले हैं. हम लोग इसमें meaning of judiciary से लेकर judicial overreach तक cover करेंगे. So these are some of the topics. And I guess these are all the topics given in the NCERT book that we are going to cover, starting from need of independent judiciary to appointment of judges, structure of judiciary, judicial review, overreach. एंड इसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी मैंने कवर किया है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन स्टे ट्यून्ड ऑन दिस वीडियो. You will certainly get to know what topic that I'm talking about. So let's dive into what exactly is judiciary. So judiciary is the third leg of our government. First comes the legislature, then comes the executive, then comes the judiciary. So judiciary is the third leg, and eventually this is a cycle, right? Do not consider it to be a separate leg, but judiciary impacts legislature and executive. Judiciary is the only part of the government which impacts legislature as well as the executives. So its role and its importance is very very crucial. So let's start by understanding the meaning of judiciary. So as we all know that judiciary in Latin means judges, a bench of judges, group of judges and courts. The true meaning of judiciary is this. But as per the explanation given in the book, it is judiciary is all about interpreting the law, ensuring that they are applied correctly and they are resolving the legal disputes. This is one of the major aspects of judiciary. एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जुडिशरी का मेजर काम ये है कि जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है उसको इंटरप्रेट करना और उसके बेसिस पे डिसीजंस देना. डिसीजंस कैन बी फेवरेबल, कैन बी अनफेवरेबल, बट judiciary is all about interpretation. So, as per the meaning of judiciary, judiciary provides a mechanism for the resolution of disputes arising in a society between groups, between individuals, groups, and even the government in accordance with the principle of rule of law. तो रूल ऑफ लॉ क्या कहता है उसके बेसिस पे अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है, चाहे वो ग्रुप्स के बीच में हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स के बीच में हो, चाहे वो स्टेट्स के बीच में हो, चाहे वो इंडिविजुअल टू गवर्नमेंट के बेस पे हो, उन सभी के बेसिस पे जुडिशरी हमें हेल्प करता है. कैसे? एक सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं इफ वी फील कि हमारी राइट्स एंड ड्यूटीज कहीं पर भी मिस इंटरप्रेट हो रही हैं, मिसयूज हो रही हैं. सो वी कैन ऑलवेज गो टू द कोर्ट्स and decide ki whether these are correct or not. Like for example, as per the constitution in article 17, it is clearly given abolition of untouchability, which makes the practice of untouchability a punishable offense. अब ये क्यों है? Later in the day, back in 1900s, 1910, अछूत होना छोटी जाति की बहुत कॉमन था. People used to be untouchable, those who used to be a lower caste. Now according to our constitution, this is an punishable offense. अब इसकी punishment क्या होगी वो कोर्ट डिसाइड करता है.
कोर्ट डिसाइड ऐसे करता है, वो उस आर्टिकल को प्रॉपरली रीड करता है और उसके अंदर जो भी पनिशमेंट्स गिवन होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ अनटचेबिलिटी, उस बेसिस पे पनिशमेंट देता है। किन्हीं केसेस में ऐसा हो सकता है कि इंटरप्रिटेशन ये बताए, कोर्ट ये बोले कि नहीं इस केस में अनटचेबिलिटी नहीं हुई, तो उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना एंड देन गिव कम टू अ कंक्लूजन एंड गिव अ डिसीजन इज ऑल द role and responsibility of the judiciary. Now, judiciary is very important. Why? It is because judiciary has to happen on the basis of complete unbiasedness. Irrespective कि कोई भी एक पोस्ट है जो एक इंडिविजुअल होल्ड करता है, से फॉर एग्जांपल अ पुलिस ऑफिसर, अगर एक पुलिस ऑफिसर ने विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी इंटेंट, विदाउट एनी पनिशेबल ऑफेंस किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप्स के ऊपर कोई भी ऑफेंसिव एक्शन लिया है, राइट, एंड वो ऑफेंसिव एक्शन is not according to the law, then the court has the right to decide that and give punishment accordingly, irrespective जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, उनकी पोस्ट क्या है. It can be the prime minister of the country, it can be any police officer, it can be an individual who does not hold any post. तो इसीलिए it becomes very important that the judiciary works in complete independence. They are not held by any threads along. They are not impacted, they are not influenced by any individual given on any post, right? And they are not just responsible in terms of interpreting the law, they also come into picture to change the laws as well. About this we are going to talk later in our video, but starting it, I think we are able to understand what actually judiciary means, what is their core role, and how they perform. Now, as I talked about the need for independent judiciary, why एक जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना, जजेस का, कोर्ट का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, उसके बारे में हम बात करते हैं. So पहला रीजन, the first reason comes is resolution of disputes. So in case as I given you a fair example कि कोई भी dispute अगर आता है, उसका resolution होना बहुत जरूरी है. Second is the rule of law. In our country, the rule is all written and given in base of constitution. So the court abides by that rule. Court does not give independent decisions. Court does not make their own law or rule. They have to follow the law and make sure that the rules, duties, and rights given in the constitution are being followed. Third important aspect is the protection of individual rights. Rights which are given by us, given by the constitution, given to us, are very, very important. And they are actually important to make sure that there are no offensive things happening in our society to any individual, any resident of India. Again, any resident of India has to follow the procedure, has to exercise the duties, has to celebrate the rights given into the constitution. So उनको प्रोटेक्ट करने का काम हमारी जुडिशरी, हमारे कोर्ट्स का होता है. So independent judiciary is essential for several reasons, right? There, if not, if the judiciary is not independent, there would be chaos and injustice everywhere. Why? Because there can be influence of the government, there can be influence of 100 people saying the same thing over one, but it prevents that kind of dictatorship as well. So they prevent it how? By interpreting the law given in the constitution. As you can see in this image, it is a very famous image where a lady holds a balance and उनकी आंखों पे पट्टी है. There is a wheel on her eyes. Why? There is a wheel so that the law just follows the constitution, not any individual or group of individuals. So let's dive into what is independence of judiciary.
So when we talk about independence of judiciary, we talk about they operate independently, free from interference by the executive or the legislature. Executive means those who are implementing the laws. Legislature means those who are creating the laws. So the judges, they should perform their duties without any fear or favor, while remaining accountable for the constitution and its citizens. Independence doesn't mean they are above the law. They are still accountable for their actions, but they have to follow what is given into the constitution. So इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि उसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो किसी भी वे में, बल्कि जुडिशरी कैन इंटरफेयर इनटू द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। से फॉर एग्जांपल एक लॉ क्रिएट किया गया गवर्नमेंट के थ्रू, बट द जुडिशरी, द जजेस, द लॉ फील्स कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अब अमेंडमेंट या कोई भी नया लॉ आया है वो उतना इफेक्टिव नहीं है, तो जुडिशरी कैन मेक सर्टेन चेंजेस। सेकेंड इज जज हैज टू परफॉर्म विदाउट फियर और फेवर। अगर आपने कभी भी कोर्ट रूम सीन देखा होगा तो उसमें इट इज वेरी एविडेंट कि जो जजेस की कुर्सी होती है वो लोगों के ऊपर होती है, एक हाइट पे होती है। वो एक सिंबलाइजेशन है, दिस इज अ सिंबलाइजेशन दैट जज इज अबव ऑल and they are free from any kind of influence, so that they can perform without any fear or favor of anyone. Third part, they are accountable for the decisions that they make. They can be changed, and they are accountable to the constitution and citizens of the country. से फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे कोई भी एक डिसीजन दिया है, इफ एनी डिसीजन हैज टेकन प्लेस, अगर वो डिसीजन गलत है तो द जुडिशरी इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो उसके लिए वी हैव द रूल, वी हैव द राइट टू गो इनटू द अपर कोर्ट। Say for example, if in case Supreme Court of India, which is the most powerful in this world, gives a decision, we still have the authority to reach to the president of the country to make sure, to ensure कि हमारी जो भी बात है वो सुनी जाए। Correct? So it is very important to acknowledge that the courts, that the judges are independent. हमारा जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो हम लोग सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री विल बी इन कंसिस्टेंट फियर। हमारे अंदर एक डर रहेगा किस चीज का, बायसनेस का, कि अगर हमने अपनी बात रखने की कोशिश करी, अगर हमें कोई भी डिसीजन फेयर नहीं लगा तो हम अपनी बात आगे नहीं रख पाएंगे। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर the judges, the bench, the courts to be fair. बट उसके लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं? अगर एक हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए, सो व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द things, what are the contents that we are going to follow, that are followed in our via our constitution by the government? Let's go on to that. First, appointment is free from politics. When we say free from politics, अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट के जजेस और लोअर कोर्ट के जजेस, they come on the basis of merit. They have to pass exam of bar council to ensure they are selected as judges. Exactly. तो उनका जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेसिस पे होता है। सेकेंड इज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ऐसा नहीं है कि उनका जो टेन्योर है वो लिमिटेड होता, नहीं, दे आर अबाइडेड बाय द एज। अगर सर्टेन एज के बाद जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है, जो रिटायरमेंट की एज है 60 है, तो वो 60 के बाद ही रिटायर होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी आएगा, कोई किसी भी जज को आके उसका टेन्योर खत्म कर देगा, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। Third is financial independence, which is again a very important aspect. So when we टॉक अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, किसी भी जज की सैलरी जो होती है वो ऐसे ही डिसाइड होती है जैसे एक नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डिसाइड होती है। their salaries, their allowances, they are all subject to the approval of the legislature in ensuring financial independence, कि उनके पास किसी भी डिसीजन लेते हुए किसी भी फाइनेंस, उनकी सैलरी वगैरह का कोई भी दबाव नहीं होता। थर्ड,
fourth point, and which is the last very important point, is immunity from personal criticism. They are immune. कोई भी डिसीजन अगर कोई भी जज पास करता है, if any decision is passed by any of the judges, they are not entitled for any of the criticism. So the constitution ensures judicial independence through various measures, like security of tenure, financial independence, immunity from personal criticism. Plus, they are not at all imbibed again by the influence of anyone. No one, again, I'll repeat myself, no one can influence our courts except the constitution. जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसी बेसिस पे कोई भी जज एक डिसीजन पास करेगा. Yes, it is very, very important. Now, as we all know, we have courts, we have judges. हमने लोअर कोर्ट्स के बारे में बात करी, हमने हायर कोर्ट्स के बारे में बात करी कि उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है. दैट इज ऑल बिकॉज बेसिस ऑफ द मेरिट. बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सुप्रीम कोर्ट, विच इज द एपेक्स कोर्ट इन आवर कंट्री, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है. देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के पास जो केसेस आते हैं वो ज्यादातर बहुत हाई लेवल केसेस आते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट हाई लेवल केसेस, दैट मीन्स disputes between states. Then they have appellate jurisdiction, means any decision given in the high court can be challenged in the supreme court. प्लस जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, दे आर नो इंडिविजुअल जजेस, इट इज बेंच ऑफ जजेस. वहां पे एक जज नहीं होता, वहां पे बेंच होती है जिसमें 5-6 जजेस कम से कम होते हैं. सो इट इज अगेन, इट इज नॉट अ डिसीजन ऑफ अ सिंगल पर्सन, इट इज डिसीजन ऑफ द बेंच, जो अपनी बात, आपने जो भी अपना केस वहां पे रखा है उसके ऊपर डिसीजन देते हैं. नाउ अगेन, व्हाई द Supreme Court judges are different from High Court judges? Although there is no big change, but their appointment involves various officials like Council of Ministers, governors, chief ministers, and the Chief Justice of India. इसके लिए एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसको हम कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं. सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम. This system was established to prevent anyone from branch of government from having too much influence over the judicial appointments. इस सिस्टम का मतलब ही ये था कि अगर कोई भी इन्फ्लुएंस अगर आ रहा है तो उसको वहीं रोक दिया जाए. सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, so Supreme Court के Chief Justice of India in particular are selected by the top officials of the government. उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है चीफ मिनिस्टर्स का, प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, so that कि जो लोग जनता से चुन के गए हैं, the representatives of the people are the ones who are selecting the Chief Justice of India. वो एक ही होता है. बट when the Supreme Court sits, कोई भी डिसीजन के ऊपर बात कर रहे होते हैं, there is a bench of judges that go over there. Now, if their appointment is tough, अगर उनका अपॉइंटमेंट इज टफ, तो उनका रिमूवल भी उतना ही टफ होता है. देन देयर रिमूवल इज ऑल्सो टफ. ऐसा नहीं है कि आप एक जज कभी बन जाते हो तो आपको अगले दिन किसी के भी आए कि नहीं यार ये अच्छे डिसीजंस नहीं दे रहा, या फिर मुझे ये पसंद नहीं है, आप उसे हटा दोगे. पर्सनल प्रेफरेंस डजंट वर्क व्हेन वी टॉक अबाउट रिमूवल ऑफ जजेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ जजेस आर removed. First is on the basis of misbehavior or incapacity. If we realize that there is kind of misconduct, there is some kind of incapacity being shown by any of the judges, say for example incapacity not in terms of delaying decisions but incapacity in terms of hearing the petitioner and the victim,
जिसने केस किया है और जिसके अगेंस्ट केस किया है, अगर उसकी बातें प्रॉपर नहीं सुनी जा रही, उसके कंसिस्टेंट हम लोगों को सिचुएशंस और हमें कॉन्टेक्स्ट मिल रहे हैं बार 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 बार, तो इन उस केसेस के अंदर जज का रिमूवल हो सकता है। बट ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, इजी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी हायर कोर्ट के या बड़े कोर्ट के जजेस जो हैं वो दे बिकम जजेस बाय रेफरिंग, एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट पास होता है जिसके अंदर ये माना जाता है कि हाँ भाई अब ये जो पर्सन है दी है दे हैव बिकम द जजेस। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि बैलेंस ऑफ पावर हो। नाउ लेट मी गिव एन एग्जांपल जो एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। 1991 में एक पिटिशन फाइल हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो थे वी रामास्वामी, उनके रिमूवल के लिए एक पिटिशन फाइल किया गया था कि अकॉर्डिंग टू द पीपल, अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ऑफ पीपल, दे वर नॉट, द पर्सन वाज नॉट गिविंग फेयर एनफ डिसीजंस। बट इतने सीरियस एलिगेशंस होने के बाद भी द मोशन वाज नॉट पास, व्हाई? ड्यू टू लैक ऑफ कंसेंसस। क्यों उनका रिमूवल नहीं हुआ था? लैक ऑफ कंसेंसस। कंसेंसस किसके बीच में? जो वहां पे ज्यूरी बैठी हुई थी उनका जो डिसीजन था वो इस फेवर में ज्यादा था कि उनको ना हटाया जाए। द ज्यूरी डिसाइडेड दैट नो, ही शुड बी अ पार्ट ऑफ द बेंच। हेंस उनका रिमूवल नहीं हुआ, जबकि एलिगेशंस बहुत सीरियस थे। आप मुझे क्या कमेंट्स में बता सकते हैं? कैन यू टेल मी इन द कमेंट्स व्हाट वाज द एलिगेशन दैट वर अगेंस्ट जस्टिस वी रामास्वामी इन 1991? एंड अगर उसमें कुछ भी बात होगा, आई विल make sure to answer you guys in the comment sections itself. So it is very important to understand that the removal of jury is not a piece of cake, right? So now let's talk about the structure of judiciary. Let's understand what the structure of judiciary looks like. So in India, as we all know, we have single integrated system. Now, what is single integrated uh, system? So when we talk about single integrated system, at the top we have Supreme Court, the courts of court. It is the highest court. Decisions are binding on all courts. So अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन देता है वो बाकी सारे कोर्ट्स ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। ये सारे कोर्ट्स के जो भी डिसीजंस, जो भी डिस्प्यूट्स किसी भी टाइप के मैटर पे होते हैं, देयर आर रिटन एंड डॉक्यूमेंटेड। सो दिस स्ट्रक्चर ensures a streamlined process of handling cases. For instance, if someone appeals a decisions from a district court, it can go up to higher court and eventually go to the supreme court. तो ये एक चैनल है। अगर से फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक डिसीजन लिया गया, उस डिसीजन के बेसिस पे उस पर्सन के फेवर में नहीं था, तो दे कैन चैलेंज इट इन द हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट से भी हुआ कि नहीं, द डिसीजन जो लोअर कोर्ट्स ने दिया है दैट रिमेन्स द सेम, उसके बाद द पर्सन कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये अथॉरिटी हम लोग एक्सरसाइज, ये हमारा राइट है। these rights given into the constitution can be exercised by us, right? तो अगेन सुप्रीम कोर्ट हैज द हाईएस्ट डिसीजन, देन आते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या करते हैं? दे डील विद द स्टेट कंसर्न jurisdiction। से फॉर एग्जांपल अगर दो स्टेट्स के बीच में कोई भी कुछ भी विवाद होता है तो वो ऑब्वियसली हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में जाके अपनी बात रखेंगे कि दिस वाज द डिसीजन डन। एक हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे उसको वॉइड कर दिया गया, उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो फॉलो नहीं की गई। देन अगर वो हाई कोर्ट डिसीजन देता है तो इट कैन अगेन बी चैलेंज इनटू सुप्रीम कोर्ट्स। तो ये सिस्टम हमने बनाया है। तो बेसिकली इस सिस्टम के अंदर वी हैव फोर पार्ट्स। वन इज द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, उसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट, इसको हम मिडिल लेवल कहते हैं। देन लोअर केसेस में आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का एग्जांपल गाइस इफ यू कैन गिव मी इन कमेंट सेक्शन दैट विल बी रियली ग्रेट। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के क्या एग्जांपल हैं। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लेट मी गिव एन एग्जांपल, लाइक इन दिल्ली वी हैव अ रोहिणी कोर्ट विच इज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ऐसे ही आपके एरिया में कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं? प्लीज टेल अस। Now let's move into the jurisdiction of Supreme Court. Supreme Court की jurisdiction क्या कहती है, क्या उसका jurisdiction है? When we talk about jurisdiction, guys, jurisdiction
Jurisdiction means area of work, राइट? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस जो हैं वो किन किन केसेस में किन किन चीजों तक फैले हुए हैं, करेक्ट? एरिया डजंट मीन द डेमोग्राफिक एरिया, एरिया मीन्स किन किन टाइप के केसेस सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज मल्टीपल jurisdictions. First is the original jurisdiction. Original jurisdiction is it allows directly considering the cases like dispute between the states. Say for example, एक स्टेट इंडिया के अंदर है से हरियाणा और दूसरा स्टेट है राजस्थान। अगर उन दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी भी एक स्टेट ने उस कॉन्ट्रैक्ट के सारे रूल्स और जो भी उसमें टर्म्स और कंडीशंस थी वो फॉलो नहीं करे, so the state can go to the सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट के आगे केस जाएगा तो आएगा स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो वहां के स्टेट ओन्ड जो लॉयर्स होते हैं वो उस केस को रिप्रेजेंट करते हैं। हर स्टेट एक अपने लिए एक लॉयर अपॉइंट करता है जिसको वो रिप्रेजेंट करता है, और वो लॉयर जाके जजेस के सामने अपनी बात रखता है। उसको कहते हैं ओरिजिनल jurisdiction, जहां पे डायरेक्टली केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सेकंड इज writ jurisdiction. What is writ jurisdiction? It lets individual approach the Supreme Court directly if their fundamental rights are violated. So say for example, I am an individual, I can also go directly to the Supreme Court. अगर कोई भी मेरा fundamental right, if it is violated, I can directly go to the Supreme Court. Third pointer that comes into picture is the appellate jurisdiction. Appellate jurisdiction means Supreme Courts can consider decision made by the lower court. As I've given an example in the previous case कि अगर हरियाणा गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो हाई कोर्ट जाएंगे। ये रूल नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि वो हाई कोर्ट ही जाएंगे। अगर वो हाई कोर्ट जाते हैं और they are not satisfied with the decision, they can appeal further into the Supreme Court. Lastly comes the advisory jurisdiction. अब ये बहुत सब्जेक्टिव और बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट does not only deals with people and group of people, they also happen to deal with the government as well. Say for example, अगर किसी भी सिनेरियो में आपने अभी रिसेंट केस में एक, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आर्टिकल 370 which is आर्टिकल फॉर स्पेशल प्रिविलेजेस टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, उसको अभी अबॉलिश किया गया, करेक्ट? जब ये पार्लियामेंट में ये डिसीजन हुआ, उसके बाद द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू सीक द एडवाइस इनटू द सुप्रीम कोर्ट। वो ये डिसीजन लेके इस लॉ के बारे में सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं प्रेसिडेंट, टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ इंटीग्रिटी, लेवल ऑफ डेप्थ ऑफ दिस लॉ। अगर ये किसी भी वे में जनरल पब्लिक के फेवर में नहीं है तो दे कैन एक्चुअली यूज कोर्ट्स पावर, द प्रेसिडेंट कैन यूज देयर वीटो पावर टू एडजस्ट द अमेंडमेंट अकॉर्डिंगली। वो इसको कोई भी लॉ को, चाहे ये आर्टिकल 370 हो, चाहे वो आर्टिकल 14 हो, चाहे वो आर्टिकल कोई भी हो, उसके बेसिस पे उस डिसीजन को ओवररूल कर सकते हैं। तो हमने समझा कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट जस्ट देयर टू हेल्प लोअर कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट देयर जस्ट टू सी द केसेस ऑफ द स्टेट्स, the Supreme Court is not just there to see the cases of individual, but they also help the president to seek advice in matters of public interest. Guys, if any question, please feel to write that into the comment section. I will be really happy to help you all. Now, another important aspect of the judicial is the judicial review. It is a very powerful tool that allows the Supreme Court
to examine the constitutionality of any law. If the court arrives at the conclusion that the law is inconsistent and with provisions of the government, such laws is declared unconstitutional and void. जैसे मैंने आपको पहले बताया, judiciary is the only leg of the government which can interfere into the legislature and executive. अगर judicial review as such कोई constitutional में term नहीं है, but जुडिशियल के अंदर ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है कि इन केस अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अगर कोई भी लॉ ऐसा है जो इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो वो उसको वॉइड कर सकती है एंड हैज टू बी स्ट्राइकन डाउन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। वो उसको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन लेके बैठते हैं किसी दिन और सारे लॉस पढ़ते हैं, नहीं। उनके पास जो केसेस आते हैं, उन केसेस के बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं, वो लॉ पढ़ते हैं, उस लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने के बाद अगर उनको लगता है कि इस लॉ के अंदर ही कुछ अमेंडमेंट होने जरूरी है या ये लॉ को अबॉलिश भी करना पड़ेगा, तो वो होगा। ऐसा नहीं है कि उसकी बात को नहीं माना जाएगा। सो दे हैव दिस पावर टू एंश्योर दैट द लॉ does not violate any of the rights and duties of the people. If a law violates constitutional provision, that the court can strike it down any given point of time. किसी भी सिनेरियो में सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को अबॉलिश कर सकता है। तो दिस इज द पावर ऑफ जुडिशरी। इसीलिए कहते हैं कि एक जजेस के पास बहुत पावर होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे लेजिस्लेचर के लेग के गवर्नमेंट के लोग जो हमारे बैठे हुए हैं, जो लोकसभा राज्यसभा में बैठे हुए हैं, उनको चेंज करने की अथॉरिटी रखती है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। गाइस, इन डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट, वी हैव entitled a system which allows us not to be bounded by any influence which is negative. Now comes one of the topics जो हमारे index में नहीं था, which I really like. It is the judicial activism. This topic is very important. Why, guys? Now when we talk about judicial activism is all about when judges go beyond applying the law strictly and instead use their own judgment and values and opinion to interpret laws and make decisions, offer bring about social change or correct government failures, sometimes even creating new policy from the bench. ये भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और किसी भी एक पर्सन को लगा कि नहीं वो डिसीजन ठीक नहीं है, चाहे वो उनसे रिलेटेड ना हो। से फॉर एग्जांपल आप सबने एक मूवी जरूर देखी होगी, जॉली एलएलबी। उस जॉली एलएलबी मूवी में क्या था, जो एक्टर होता है, जो लॉयर का रोल प्ले करते हैं, वो एक PIL डालते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उस डिसीजन के बाद कि अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, अकॉर्डिंग टू दैट लॉयर, कि जो डिसीजन लिया गया था वो फेयर नहीं था, तो जो डिसीजन था उसको चैलेंज किया गया। दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म। एंड इन दिस सिनेरियो अ जज इफ फाउंड कि वो PIL जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई है वो करेक्ट है, तो वो उस डिसीजन को ओवररन कर देगा या टर्न कर देगा। तो इस मूवी में यही दिखाया गया। इनिशियली उस केस में क्या था कि एक बंदे ने कुछ क्राइम किया था, बट जो इनिशियल जजमेंट आया था उसको फ्री कर दिया था, उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगे थे। बट जब PIL डाली गई, द पर्सन वॉज फाउंड गिल्टी, एंड वेन फाउंड गिल्टी द डिसीजन वॉज ओवररन। उसको टर्न करके उसको जजमेंट में उसको पनिश कर दिया गया था। इससे क्या होता है, इससे होता है कि हमारी जुडिशरी इट बिकम्स मोर एक्सेसिबल। नाउ आई नो कि इवन आई फील गेट सम ऑफ द पर्सन वाज नॉट गिवन अ फेवरेबल जजमेंट या एक फेयर डिसीजन नहीं था, तो आई ऑल्सो कैन गो एंड अप्लाई दैट PIL, यूज दैट पावर ऑफ माइंड एंड आस्क द कोर्ट कि आप मुझे बताओ कि ये डिसीजन क्या फेयर था या नहीं था। अगेन इट हैज सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। होता है
पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जरूर हैं कि हम लोग उसके ऊपर बात कर सकते हैं, वी कैन go to the court for the decision taken by court, but there are negative impacts also. People, just to come into publicity, just to have fame, 5 minute fame, they put up PIL on famous decisions. Like for example, अभी किसी को पता चला कि एक जज ने डिसीजन ओवर किया था, so the lawyer setting इन द कोर्ट सेज कि ठीक है, एक फेमस केस को मैं भी एक PIL डाल के देखता हूँ, अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो आई कैन बिकम फेमस, विच इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट. और सेकेंडली, अगर ये नेगेटिव है, अगर वो जो भी डिसीजन इनिशियली लिया गया था वो रिकंसीडर नहीं हुआ, तो कोर्ट का टाइम भी वेस्ट होता है. करेक्ट. सो देयर इज अ ब्लरिंग लाइन, बट यस, दिस राइट नीड्स टू बी गिवन. व्हाई? सो दैट people feel secure about the decision giving into on the by the judiciary system. उनको ये लगना चाहिए कि हाँ, कोई भी डिसीजन है वो फ्री रहे, कि हम कोर्ट के पास जा सकते हैं. राइट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट कम्स जुडिशियल ओवररीच. होता है कई सारे केसेस के अंदर जहां पे अगर कोई भी हमारे एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ गवर्नमेंट ने अच्छा काम नहीं किया, तो जुडिशरी कैन ओवररीच. वो जा सकती है और उसके अंदर एक्शनेबल आइटम्स ले सकती है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. So when a court goes beyond its authority and interferes in areas that are under the control of executive or legislature, it is known as judicial overreach. Say for example, अभी एक डिसीजन आया लैंड मार्किंग के बेसिस पे, बहुत कॉमन है ये, कि लैंड मार्किंग हुई कहीं पे, उस लैंड मार्किंग के बेसिस पे कोई काम है जो एग्जीक्यूटिव लेवल से डिले चल रहा है, जो काम यूजुअली 2 से 3 महीने में होना चाहिए, तो उसे 2 से 3 साल लग गए. तो जुडिशरी जजेस, द बेंच ऑफ जजेस कैन पास अ डिसीजन स्टेटिंग कि ये काम अगले 2 महीने में हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो ये पनिशेबल ऑफेंस है. ऑल्दो जुडिशरी का काम ये नहीं है, बट दे हैव द पावर टू गो अबव इट्स अथॉरिटी एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. मोर ओवर, जुडिशरी और ये जो राइट है, the Supreme Court has the discretionary power under the Article 142, which specifies that in the exercise of its jurisdiction, the court may pass or decree or may any order required make any order required to complete justice in any cause or issue pending before it. अगर कोई भी इशू है किसी भी टाइप का, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी बेंच से ऑर्डर दे सकती है कि कोई भी काम, कोई भी डिसीजन इतने टाइम फ्रेम तक हो जाना चाहिए. इनफैक्ट दे कैन ऑल्सो ऑर्डर द रिमूवल और सस्पेंशन ऑफ एनी पर्सन इन एनी ऑफ द पोजिशन इफ फाउंड गिल्टी. अगर उन्हें लगता है कि किसी भी एक नॉर्मल पुलिस वाले ने किसी भी एक लोकल पब्लिक के साथ कोई अत्याचार किया, इफ अ नॉर्मल पुलिसमैन हैज done something wrong in the eyes of the constitution, in the eyes of the law, they can even be suspended. Such kind of decisions can also be given by the judges. So it is a very very powerful. इसीलिए कहते हैं कि that the judiciary, legislature, executive is a cycle, but the judiciary has the most power because they have the right to overrun the legislature and the executive levels. Right. Now let's talk about very important topic, which is judiciary and parliament. अब judiciary and parliament क्या है? They go hand in hand. Why we talk about parliament? Parliament is the place where the legislature takes place. In the last slide, we gave an example of how they can influence the power of executive levels. Now let's talk about the parliament. And to cite an example, it is also given in the book. Let's take an example of Keshwananda Bharti case. So what happened was in 1973, the state wanted a piece of land from a temple in Kerala, right? And the petition was filed by Keshwananda Bharati, who was the head of that temple. So the case was heard by the Supreme Court. The court had a bench of 13 judges, and the court, Keshwanandan Bharati, said that this is a piece of land by the temple, and the government is asking for the temple ownership of that land. But this is an ethical place, this is a place of worship. So, in that case, the Supreme Court had amended the state's land reform.
जो लैंड लॉस थे वहां पे लैंड रिफॉर्म के, उसको इन्फ्लुएंस किया सुप्रीम कोर्ट ने, एंड द रूलिंग वाज प्रोफाउंडली इम्पैक्टेड द रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ये इतना बड़ा डिसीजन था दैट द पार्लियामेंट हैड टू मेक चेंजेस। इट वाज अ बैक देन ये बहुत बड़ा केस, एक नेशनल लेवल न्यूज बन गई थी, क्योंकि उससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लैंड रिफॉर्म के जो लॉज हैं उसमें चेंजेस लाइए, एंड कंप्राइजिंग 13 जजेस थे, जिसमें 6 ने फेवर किया था कि नहीं, लैंड रिफॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, द स्टेट गवर्नमेंट वाज राइट, बट 7 जजेस से नो, दिस लैंड, दिस petition which has come by the केशवानंदा भारती, सिरपादा गलवारू, वो करेक्ट है। एंड दिस वाज अ बिग डिबेट इन द पार्लियामेंट कि कोर्ट्स ने कोई भी डिसीजन जो लिया है उसके बेसिस पर हमें पूरे लैंड जो रिफॉर्म लॉ है उस स्टेट के वो चेंज करने पड़ रहे हैं, और उन्होंने किए थे। इससे एस्टैब्लिश हुआ कि इफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इवन द लॉ हैज टू चेंज। So this is the power of system. This is the power of process. This is the mirror I was talking about, the mirror of power. If the judiciary has said that this is incorrect on the basis of the law given into our constitution, on the basis of facts, then the law also has to change. This gives the people the strength कि yes, if not, we will be heard in any case scenario. सोचो, एक केरल में एक बंदा है जो एक पुजारी है, उसका भी सपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने किया और लॉ को चेंज किया। करेक्ट। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। ये 6 ऐसे क्वेश्चंस आई फेल्ट कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक व्हाट इज जुडिशरी, व्हाट डज इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप नोट डाउन कर सकते हो, एंड इफ यू फील दीज आर इंपॉर्टेंट यू कैन ऑलवेज टाइप इनटू द कमेंट सेक्शन। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो यू वांट मी टू explain it to you guys, I'll be really happy about it. Please use the comment section as much as possible. Now, what we have learned the importance of independent judiciary, we learned the importance of balance of power, we learned the importance of protecting the rights, protecting the duties, protecting the constitution. And with this, I'll end my video. All the best, guys. Please, please, please like this video, follow this. This is a very important chapter. Yes, 40 minutes video, but it is very important for you guys. This 40 minutes is going to cover each and everything. Still, guys, make sure if you have any questions, drop it down to the comment section. Bye, guys. Take care.